Now we are doing another question. We are doing another question. Question number 3. X plus y is equal to 19. X minus 8y is equal to 10. Question number 3. X plus y is equal to 19 and x minus 8y is equal to 10. I will give the name equation 1 and equation 2. Muhammad Safir. Equation 1. This is equation 2. This line should be a longer one, not just like the minus sign. This line should not be just like a minus sign, it should be a longer line. Acha. Now we will eliminate y. Again, we will eliminate y first. We can eliminate any one of them, but I am trying to eliminate y first. So I will check the coefficients. The coefficient of y is 1, the coefficient of y is 8. Not equal. So how it can be equal? If I multiply by 8, equation 1, it will become 8y. If I multiply by 8, it will become 8y. So this is already 8. So equation 1 is multiplied by 8. And we will get equation 1. This is the line is means this is the number of the equation. This is not 1. This is the number of the equation. So 1 into 8. So it will become 8x plus 8y is equal to 152. Now it become 8. This is already 8. So this is equation 2. I will write over there. This is equation 2. X minus 8y is equal to 10. Now I will now the coefficients of y are become equal. This is 8. This is also 8. Now I will check the sign. This is plus sign. This is minus sign. Both are opposite signs, so we will add them. Here I will write plus. In addition, we are not going to change the sign. Just will add them without changing the sign. This is addition. And subtraction, we will change the sign of the equation which is being subtracted. यानी नीचे वाली equation. 8x plus x, we are adding. This is plus 8x, this is plus x. So it will become 9x. Plus 8y minus 8y, 0. And is equal to 152 plus 10 will be 162. X will be equal to 162 divided by 9. 9 ones are 9, 9 ones are 9, 9 eights are 7. 72. So 18. The value of x will become 18. अब इसी तरह हम y की वैल्यू निकालेंगे. हम x को एलिमिनेट करेंगे. x को एलिमिनेट करने के लिए हम x के कोएफिशिएंट चेक करेंगे. 1, ये भी 1 है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है. दोनों सेम कोएफिशिएंट्स है x और y के, तो हम यहां लिख देंगे x plus y is equal to 19. Equation 1. X minus 8y is equal to 10. ये हमने इक्वेशन 2 लिख लिया. x के कोएफिशिएंट सेम थे, हमने इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई किया करने की जरूरत नहीं रही.
सेम कोएफिशिएंट थे। अब देखने साइन इनके साइन क्या है, सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं माइनस का साइन लिखूंगा कि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, और सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले के साइन चेंज कर दूंगा। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर दूंगा। द टर्म मे बी ऑन द राइट साइड और मे बी ऑन द लेफ्ट साइड, नो प्रॉब्लम। वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ ऑल द टर्म्स। तो प्लस एक्स था, ये माइनस एक्स हो गया, माइनस 8y था प्लस वाई हो गया, प्लस 8y ये प्लस 10 था, ये माइनस हो गया। जो भी साइन है वो चेंज करते हैं। अब x माइनस एक्स 0 हो गया, खत्म हो गया। y प्लस 8y विल बी 9y, 19 minus 10 will be 9. So y will become 9 upon 9, 1. तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। हम आंसर लिख देंगे x 18 y 1, x 18 y 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब्दुल्ला हारून। So this is the way। इसमें हमने क्या देखा, किसी एक के y के जो थे वो डिफरेंट थे, बाकी x के सेम थे, तो x को तो कुछ नहीं करना पड़ा, y के डिफरेंट थे। इसका 1 था, इसका 8 था, तो हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 8 हो जाए, दूसरी को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एज इट इज है। 8 हो जाएगा, पहले वाला ही तो काफी है। तो वो 8x प्लस पूरी इक्वेशन को 8y का मतलब इसको सिर्फ 8 नहीं करना, पूरी इक्वेशन को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करना तो हमने उसको चाहिए, हमें इसको ही लाना है 8, लेकिन उसको 8 अकेली आ नहीं सकती, पूरी इक्वेशन को ही 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इट विल बिकम 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 into 8 152। ये ऊपर लिख दिया, नीचे ऑलरेडी इसका 8 था तो उसको एज इट इज लिख दिया हमने, और फिर हम चेक किया इसके साइन अपोजिट थे तो हमने ऐड कर दिया। इसको 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, ये तो हमने लिखना पड़ेगा कि इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वरना ये कहाँ से आ गए, ये तो हमारे पास इक्वेशन है ही नहीं। तो यू हैव टू एक्सप्लेन ओवर देयर 1 इक्वेशन 1, दिस सर्कल मींस इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये हमारे पास आ जाएगी। 2 एज इट इज लिख दी इक्वेशन 2। अब इसके साइन हमने देखे अपोजिट है तो हमने इसे ऐड कर दिया। जब दोनों को ऐड करेंगे, नीचे लाइन डाली, 8x प्लस 8 प्लस x विद 9x, 8y माइनस 8y 0 कैंसिल, 152 प्लस 10 162, x will be equal to 162 divided by 9 is equal to 18। तीसरा दूसरे को अब हमने ये y को एलिमिनेट किया था हमने, हम x को एलिमिनेट करेंगे। x के कोएफिशिएंट चेक करेंगे, सेम है तो कोएफिशिएंट हमने एज इट इज लिख दिया इनको। फिर अब इनके साइन चेक करेंगे, यहाँ पर दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि कैंसिल हो जाए। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं ताकि वो एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, x के कोएफिशिएंट हमने इक्वल किए या इक्वल थे ऑलरेडी, और जब वो थे अब साइन चेक करेंगे, अगर उनके साइन सेम है तो वो एलिमिनेट नहीं हो सकते, कैंसिल नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, हम उनके साइन चेंज करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन चेंज करने हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन बीच में डाला हमने, दोनों के बीच में, यहाँ नहीं, थोड़ा सा यहाँ हटा के दोनों के बीच वाले, और फिर इसके साइन चेंज कर दिए तो x प्लस एक्स, और ये माइनस एक्स हो गया, वो माइनस 8y था तो प्लस 8y हो गया, प्लस 10 था तो माइनस 10 हो गया। तो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, y प्लस 8y 9y हो गया, 19 माइनस 10 विल बी 9। सो y बिकम 9 अपॉन 9, आंसर इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया।
अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दोनों को ही हमें चेंज करना पड़ेगा, और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, या हाँ क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वल है। क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 10 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2y plus 4x minus 1 is equal to 7। ये इक्वेशन हमने इसको 1 का नाम दे दिया। दूसरी हमारे पास 3y minus 2x equal to 12, इसको 2 का नाम। हम इक्वेशन 1 को देख लेते हैं। ये -1 को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं। क्या है हमारे पास 2y, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 है, इसको सिंप्लीफाई किया 2y प्लस 4x 7 प्लस 1 हो गया, so it will become 2y प्लस 4x is equal to 8। ये हम इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तो इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 3 ले ली, तो हम 1 को खत्म कर देंगे। 1 को भूल जाओ, 1 से हमने उसको 3 में चेंज कर लिया। तो 2 और 3 हम ले लेंगे, और ये इक्वेशन 1 को हम भूल जाते हैं। इक्वेशन 1 को हम भूल जाते हैं, इक्वेशन 2 और 3 हम ले लेंगे, क्योंकि 1 से हमने 3 ले लिया। 1 सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं था, इधर भी कांस्टेंट था, एक उधर भी कांस्टेंट था। हमने उसको सबको राइट पे कर दिया कांस्टेंट को, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 हम यूज करेंगे। ये कौन है? मरियम नूर। ओके, तो हम इसको इक्वेशन 1 की जगह इक्वेशन 3 यूज करेंगे। इक्वेशन 1 की जगह हम इक्वेशन 3 यूज करेंगे। तो अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज करेंगे, 1 को भूल जाएंगे। 1 से हमने 3 बना दी। ओके, हम इक्वेशन 2 और 3 को यूज करेंगे। सो देखें, अब हम इसको, ये 3y है, हमने पहले y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं सपोज। अब पहले हम y को एलिमिनेट करें ताकि x की वैल्यू निकल आए। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लेनी है हमने, 1 को खत्म कर दिया हमने,
3 और 2 को अब यूज करेंगे। 1 से जो है हमने 3 बना ली, 1 से 3 बना ली, तो 1 की जगह पर हम 3 यूज करेंगे और 2 अपनी जगह पर है, तो 3 और 2 इक्वेशन 2 और 3 यूज करेंगे हम। अब इक्वेशन 2 में देखें, ये कोएफिशिएंट ऑफ y3 है, और इक्वेशन 3 में देखें कोएफिशिएंट ऑफ y2 है, इक्वल नहीं है। तो किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसके इक्वल नहीं ला सकते। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। तो किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं ला सकते, हमें दोनों को करना पड़ेगा। इस सूरत में इक्वेशन 2 को हम 2 से कर ले, इक्वेशन 2 को 2 से कर ले तो 6 हो जाएगा, और इक्वेशन 3 को हम 3 से कर दें तो ये 2 हो जाएगा। इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन 2 को हम इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 3, 2 से कर देंगे। तो 2 से जब हम इसके इक्वेशन 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 24, और इक्वेशन 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 3 से करूंगा ये हो जाएगा 6y प्लस 12x इक्वल टू 24। 3 से 6, 12, 24 ये आ गया। अब y के कोएफिशिएंट सेम हो गए, क्या करूंगा, अब इनके साइन चेक करूंगा, दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। व्हेन साइन ऑफ सेम वी विल सब्ट्रैक्ट, यहां सब्ट्रैक्शन का निशान डाल दिया और इसके साइन चेंज कर दूंगा, माइनस माइनस, दिस इज आल्सो माइनस, ऑल आर पॉजिटिव दे बिकम नेगेटिव। 6y माइनस 6y कैंसिल, माइनस 4x माइनस 12x विल बी, लाइन डाली, माइनस 4x माइनस 12x माइनस 16x, 24 minus 24 will be 0. So minus 16x will become 0 and x will become 0 upon minus 16 will be 0. So x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है, y की निकालने के लिए x को एलिमिनेट करेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए हम x को एलिमिनेट कर देंगे। x को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 2 और 3 यूज कर रहे हैं, याद रखिए 1 नहीं है, 1 हमारे पास नहीं रही, तो इक्वेशन 2 और 3 को हम यूज करेंगे। हमने अब x को एलिमिनेट करना है, क्योंकि x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम x को एलिमिनेट करते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए x का कोएफिशिएंट यहाँ -2, ये 2x है, 2 ले ले, और यहाँ इक्वेशन 3 में 4 है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हो जाएगा। इसको करने की जरूरत नहीं है, ये 4 ऑलरेडी है, तो इक्वेशन 2 को जो है मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इक्वेशन 2 सॉरी, हाँ, इक्वेशन 2 multiplied by 2, it will become 6y minus 4x is equal to 24. Sorry, 6y, 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को, 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 24, और नीचे वाली इक्वेशन 3 ऑलरेडी 4 है, 4x है, इसको करने की जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन 3 एज इट इज लिख दूंगा मैं, 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 8, एज इट इज लिख दूंगा। मोहम्मद हुजैफा,
ओके, इसको एज इट इज लिख दिया। अब मैंने चूंकि x को, यहाँ मैंने y को एलिमिनेट किया था, x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो x के कोफिशिएंट इक्वल है, ये मैंने देख लिया। अब इनके साइन अपोजिट हैं तो हम ऐड कर देंगे, साइन अपोजिट है तो ऐड कर देंगे, क्योंकि साइन चेंज होने चाहिए दोनों के, तो ही वो कैंसिल होंगे ना। उसको खत्म एलिमिनेट करना है, दैट मींस वी हैव टू रिमूव देम, so they will be removed if they have the opposite sign. If they are not opposite sign, they don't have the opposite sign, so we have to subtract so that we can change the sign. तो अपोजिट साइन ऑलरेडी है तो हम इसको प्लस कर देंगे। 6y plus 2y will be 8y, minus 4x plus 4x cancel, equal 24 plus 8 will be 32. Y will become 32 upon 8. Y is equal to 4. ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अब हम आंसर, फाइनल आंसर लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना आया था, 0, और y इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इस तरह हम कोएफिशिएंट इक्वल करके हमको इनको एलिमिनेट करते हैं। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन। एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। एलिमिनेट नहीं करेंगे हम किसी के को, सब्ट्रैक्ट करके उनको खत्म नहीं करेंगे, या ऐड करके उनको खत्म नहीं करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे। हम उनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, so that is called the substitution method. So now I am starting the substitution method. अच्छा, एक चीज बेटा आप लोग सुन ले कि today I am going to upload the assignment. This is the first assignment, up to I think 7 o'clock, 7 बजे तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा। बाहर उसका टाइम मैं 7 बजे ही दूंगा, अगर पहले पे मैंने अपलोड कर दिया तो। सो इंशाल्लाह यू मे चेक एट 7 o'clock, 7 बजे आप उसको चेक करें। इंशाल्लाह यू विल फाइंड द असाइनमेंट, यू हैव टू सॉल्व द असाइनमेंट। और ये 2-3 दिन का टाइम उसमें मैं दूंगा आपको, उसमें टाइम भी मेंशन होगा कि आपको किस दिन और किस टाइम पे आपको उसको सबमिट करना है, किस डेट में और किस टाइम तक आपको डेडलाइन जो है वो उसमें होगी। सो यू हैव टू सबमिट दैट। क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद उसका इमेज बनाना है, इमेज बनाने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद उसको एलएमएस पर सबमिट कर देना। उसमें सबमिट का बटन होता है, वहां आपने सबमिट कर देना, अपलोड करके सबमिट कर देना है आपको पीडीएफ फाइल में। 5 नंबर की असाइनमेंट है एक, और ये आप तो मुफ्त के नंबर होते, और ये मेरे ख्याल से अगर आप करने बैठेंगे तो 1 घंटे। जी बेटा कहिए। सर ये वाला पोर्शन समझा देना या वापस से, ये 2 और 3 वाला पहला। अच्छा, समझा दूंगा। तो आपको जो क्या करना है, आपको उसका असाइनमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको एलएमएस पर सबमिट करना है। एंड डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट का आपने इंतजार नहीं करना, क्योंकि आपको पता है हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। आप लास्ट मोमेंट का इंतजार करेंगे, पता चला उस वक्त नेट ही काम नहीं कर रहा, पता चला उस वक्त आपकी लाइट ही चली गई, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो आप इंतजार नहीं करना, जैसे ही आपको असाइनमेंट मिले आप उसको फौरन जो है कोशिश करें आज ही सबमिट कर दें उसको खत्म करके, क्योंकि 7 बजे तक आपको मिल जाएगा वो। 7 बजे वो मैं उसका टाइम दे दूंगा, उससे पहले आप उसको ओपन नहीं कर सकते। मैं अगर अभी भी अपलोड कर दूं उसको, आप उसको जब मैं टाइम दूंगा तो उसी टाइम पे वो ओपन होगा, और मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जब मैं उसको अपलोड करूंगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा ग्रुप में। तो फिर जब ग्रुप में आपको मैसेज मिल जाए तो आप बस उस पे एलएमएस पे जाकर उसको चेक करके आप उसको सॉल्व कर लें, उसको कॉपी कर लें, आप उसको डाउनलोड कर लें, असाइनमेंट को डाउनलोड करने के बाद उसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद उसका आप इमेज बनाएं, इमेज बनाने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक फाइल बना लें, उसको मर्ज करके तमाम क्वेश्चंस को 2 या 3 4 जितने भी पेजेस पर आए उसके इमेज बनाएं, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करें, उनको मर्ज करें, और तरतीब से
ये नहीं कि तरतीब से नहीं करना, आपका बहुत टाइम है, हर चीज जो तरतीब से होनी चाहिए, साफ इमेज बहुत साफ हो ताकि पढ़े जाए, रीडेबल हो। इरीडेबल ना हो, जो मैं पढ़ ही ना सकूं तो मैं उसको क्या आपको मार्क्स दूंगा, क्या चेक करूंगा जब मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो उसको इमेज साफ सुथरे बनाने हैं, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और उसको फौरन सबमिट कर देना है। वेट नहीं करना लास्ट मोमेंट का बेटा, वेट नहीं करना, 2-3 दिन का टाइम बहुत ज्यादा होता है। आप उसको एक ही दिन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं पाकिस्तान में, ये किसी भी वक्त नेट नहीं होगा, कभी बिजली नहीं होगी, बाज़ औक़ात तो 24-24 घंटे बिजली नहीं होती। तो ये मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, तो इनको हम तभी निमट सकते हैं कि हम अपना काम बस जल्द से जल्द कर लें, जल्द से जल्द करके उसको सबमिट कर दें। उसको वेट नहीं करना आपने कि आखिरी लूँ मैं, अभी तो बहुत टाइम है, पहला फला ये काम कर लूँ, फला वो काम कर लूँ, फिर सबमिट कर दूंगा। नहीं, जैसे आपको वो मिल रहा है फौरन कोशिश करें उसको जितना जल्द से जल्द 10 घंटे 5 घंटे में उसको खत्म करके जमा करा दें, सुबह तक जमा करा दें। ये नहीं, इंतजार नहीं करना, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा, आपके 5 नंबर जो है आप मिस कर जाएंगे। और ये 5 नंबर फ्री के होते हैं असाइनमेंट में, क्योंकि असाइनमेंट सबकी एक जैसी होती है, अलग अलग तो क्विज़ेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर एक को अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, टाइम भी बहुत कम होता है उसमें। और वो नेक्स्ट वीक में क्विज होगा आपका और क्लास के अंदर होगा, नेक्स्ट वीक में क्विज होगा, क्लास के अंदर होगा। और तो ये आपने याद रखना है। 11 लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना आपने, फौरन उसको जैसे ही आपको मिले आप कोशिश करें उसको फौरन से पहले उसको सबमिट कर दें। तो ये आपसे कहना था। और नेक्स्ट वीक में आपका क्विज भी होगा, नेक्स्ट वीक में क्विज होगा। अभी आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, ये इसी हफ्ते में आपने जमा करानी है, उसके जो टाइम है, जो वक्त मुकर्रर है, उसके अंदर अंदर आपने जमा करानी है पीडीएफ फॉर्मेट में। चेक कर ले पीडीएफ फॉर्मेट जमा कराने से पहले कि जो आपने पीडीएफ ओके फॉर्मेट सर। बनाया है वो ओपन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि आप तो, हमने तो पीडीएफ बना दिया, मेरे पास तो ओपन ही नहीं हो रहा, भाई मैं उसको क्या करूंगा, जो मेरे पास ओपन ही नहीं हो रहा तो मैं उसको कैसे चेक करूंगा। हर चीज तसल्ली के साथ करके आपने जमा करानी है। और इसमें आप कोशिश करें, कोई इसमें प्रैक्टिस करें पीडीएफ में कन्वर्ट करने की, क्योंकि एग्जाम में नहीं, ये तो असाइनमेंट है, 2-3 दिन टाइम होता है, लेकिन क्विज और वो जो है आपका उसमें फिर आपको टाइम नहीं मिलता एग्जामिनेशन में और क्विजेज में। वो तो 5-10 मिनट मिलते हैं, क्विज में 5-10 मिनट मिलेंगे, एग्जामिनेशन में 1 घंटा मिलता है आमतौर पर, आधा घंटा मिड टर्म में, आधा घंटा, और फाइनल में 1 घंटा सबमिट कराने के लिए, सॉल्व करने के टाइम के अलावा। तो बेटा ये आपने करना है, आप अपने आप को फास्ट करें पीडीएफ, ताकि पीडीएफ में आप जल्द से जल्द कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, ये कह रहे थे आप, कौन, कुछ कोई सर कौन, लेफ्ट वाला, ये वाला, सावी सावी, सर ये नीचे से, ये वाला, दिस जी सर वन, यहाँ इस सर, उसके ऊपर सेकंड। Here I am eliminating y. Here I am eliminating y. इक्वेशन 1 को हमने फॉरगेट कर दें, क्योंकि हमने इससे इक्वेशन 3 बना दी। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हमने लेना है, उससे हमने x और y की वैल्यू निकालनी। इक्वेशन 1 खत्म हो गई सब, फॉर्म आ गई। आवाज बहुत डिफरेंट आ रही है सर। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हमने लेना है। इक्वेशन 2 और 3 में हमने पहले y को इंटीग्रेट करना है, y को हमने इंटीग्रेट करना है, इक्वेशन 2 में y को सर वॉइस इज कटिंग, आई गेस और माइक इक्वेशन 3 सर में आपकी वॉइस बहुत हल्की आ रही है। आवाज हल्की आ रही है। यस सर, यस सर। अभी भी आप सही है? यस सर अब अब सही है सही है। सर। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ y को एलिमिनेट करना है, y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो दोनों को कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, दोनों एक जैसे। तो हमने इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को। इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, वी विल गेट 6y minus 4x is equal to 24, 6y minus 4x is equal to 24। और इक्वेशन 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से, तो ये हो जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो वी विल गेट 6y
प्लस 12x इक्वल टू 24। ये हमने इक्वल हो गए y के को, y को एलिमिनेट करना है तो y के कोएफिशिएंट हमने चेक करने, सिर्फ y के कोएफिशिएंट इक्वल करने। अब कोएफिशिएंट इक्वल करके हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने देखा कि दोनों के साइन, इफ द साइन आर सेम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे इसके नीचे वाली के। जब साइन चेंज होंगे तो ये कैंसिल होंगे, एलिमिनेट होंगे, वरना नहीं हो सकते। तो एलिमिनेट करने के लिए हमने इसके साइन भी चेंज कर दिए। माइनस किया तो माइनस करने पर इसके साइन चेंज कर दिए। तो 6y माइनस 6y विल बी 0, कैंसिल आउट हो गए। माइनस 4x माइनस 12x विल बी माइनस 16x, 24 माइनस 24 ये भी 0 हो गया। So x will be equal to 0 upon minus 16. The answer is 0. तो 0 upon minus 16 the answer is 0. तो 0 आ गया। इसी तरह हम दूसरे में यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ये तो y को एलिमिनेट किया, अब x को एलिमिनेट करेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए x को खत्म करना पड़ता है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो थोड़ा कैमरा सेट करना। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम x की कोएफिशिएंट चेक करेंगे। यहाँ -2 है, यहाँ 4 है। तो अगर सिर्फ इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 6y माइनस 4x इक्वल टू 24। इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, वी विल गेट 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 24। और इसके 4x हो गया, ये ऑलरेडी 4x है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 3 एज इट इज लिख दिया। 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 8। अब हमने इसके y x को कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, हमने इसको एलिमिनेट करना है। उसके साइन चेक करेंगे, साइन आर ऑलरेडी अपोजिट, अपोजिट है तो हम ऐड कर देते हैं, और सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अपोजिट है तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो 6y प्लस का साइन लिख दिया, और प्लस में साइन चेंज नहीं होते, एज इट इज रहने देते हैं। 6y प्लस 2y विल बी 8y, minus 4x plus 4x cancel 0, 24 plus 8 will be 32, 8y is equal to 32, y will become 32 upon 8, y is equal to 4। तो y की वैल्यू 4 आ गई, आंसर लिख दिया। x की वैल्यू 0 हमने निकाल ली थी, y की वैल्यू 4 आ गई। सो दिस सर जी कहिए। सर अगर हम x की वैल्यू निकाल चुके होंगे तो उसको किसी भी इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू नहीं नहीं निकाल डालना ना बेटा, बार बार मैं क्या कह रहा हूँ, एलिमिनेट करना है, फिर वही ओके सर। जो कहा जा रहा है वो समझने की कोशिश करें। अपनी तरफ से मुझे मशवरे मत दिया करो। ओके सर ओके सर। मैं आपको एक मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर वही बात। 10 मेथड है इसको सॉल्व करने के। अब मैं 10 डिस्कस करूंगा कि एक ही दम में, एक टाइम में एक मेथड डिस्कस होता है भाई। नाउ आई एम डूइंग द सेकंड मेथड व्हिच इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। y की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं तो हम x के टर्म्स में निकाल लेंगे, x की निकालना चाह रहे हैं तो y के टर्म्स में, और निकाल लेंगे, और वो फिर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। y इज इक्वल टू x, और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। नाम दे दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 से y की या x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या इक्वेशन 2 से x या y की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x निकाल